Good morning, students. Welcome to your EVS class, lesson number 2, Special People. In this class, we will read about special people. Students, do you know about special people? Special peoples are those people, they have some special needs. They need some special care. That's why we call them special people. There are many old, sick and physically or mentally challenged people around us. In this chapter, you will learn about the problems of special peoples and the ways in which we can help them. Look around, what do you find? Generally, people who are healthy and active in their day to day lives. However, there are such people who are sick, old, or even mentally or physically challenged. Such people have special needs, hence, they are called special people. Students, generally will see all peoples are healthy and active like us. बट फिर भी सम पीपल्स ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, ओल्ड होते हैं एंड इवन जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं. मेंटली चैलेंज पीपल वो होते हैं स्टूडेंट्स हुज ब्रेन डू नॉट वर्क प्रॉपरली एंड फिजिकली चैलेंज पीपल वो होते हैं दे हैव सम फिजिकल डिसेबिलिटी लाइक उनका कोई बॉडी पार्ट अच्छे से वर्क नहीं करता. सम पीपल डोंट वॉक प्रॉपरली एंड ऑल. ऐसे लोगों को हम फिजिकली चैलेंज्ड पीपल कहते हैं. Problems of special people, physically or mentally challenged. Physically challenged people have physical disability. Blind people cannot see. You might have seen blind people walking on the road with the help of stick. Blind people can read and walk in Braille. Braille is a script which is written on a thick paper by making a row of raised dots with a pointed tool. All the letters of Braille comprised 1 to 6 dots and are read by rolling the fingers on them. The alphabet was invented by Louis Braille. Louis Braille was from France. He lost his eyesight in childhood while playing with the sharp tool. He was very hardworking and wanted to study further. So he developed a method in which the alphabet was made from 6 raised dots. This was the Braille script. Today, Braille script can be written by using a special. Students, physically challenged people की कुछ physical disabilities होती हैं जो people देख नहीं सकते. we call them blind people. आपने बहुत बार देखा होगा सड़क पर ब्लाइंड पीपल को चलते हुए विद द हेल्प ऑफ स्टिक. ब्लाइंड पीपल ब्रेल की हेल्प से पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं. स्टूडेंट्स, ब्रेल इज लाइक अ पैटर्न, अ वे ऑफ राइटिंग थिंग्स ऑन अ पेपर. ब्रेल में 6 डॉट्स को अल्फ़ाबेट्स में यूज़ किया जाता है. एज यू सीन इन दिस पिक्चर, ईच अल्फ़ाबेट्स इज कंसिस्ट ऑफ सम डॉट्स. इन डॉट्स को एक पॉइंटेड टूल की हेल्प से रेज किया जाता है सो दैट ब्लाइंड पीपल उन्हें अपने फिंगर्स के साथ रोल करके पहचान सके, अपने हैंड से उनकी पहचान करके उन्हें पढ़ सके और लिख भी सके. इन अल्फ़ाबेट्स को किसने इन्वेंट किया था? लुइस ब्रेल. स्टूडेंट्स, लुइस ब्रेल ने इन अल्फ़ाबेट्स को इन्वेंट. स्टूडेंट्स, लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे. बचपन में ही उन्होंने अपनी आईसाइट खो दी थी वाइल प्लेइंग विद द शार्प टूल. वो आगे पढ़ना चाहते थे. दैट्स वाई उन्होंने ये मेथड डेवलप किया जिसमें अल्फ़ाबेट्स को डॉट्स की मदद से बनाया गया. इसे ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है. आजकल इसे स्पेशल कंप्यूटर से भी बनाया जाता है. हेलन केलर इज़ अ डेफ एंड ब्लाइंड वुमेन. Is a role model for millions of physical challenged people. She lost her eyesight and became deaf at the age of 1.5 years. She was sad, angry and lonely. Then she got a wonderful teacher, Annie Sullivan, who helped her read and write in Braille. Helen Keller became an educator and wrote several books. People who cannot hear are deaf and those who cannot speak are mute. Deaf and mute people communicate through sign language. People whose brain do not function normally are called mentally challenged people. Such people needs our special care.
स्टूडेंट्स, हेलन केलर एक ब्लाइंड और डेफ वुमेन थी. शी इज़ ओनली 1.5 ईयर व्हेन शी लॉस्ट हर आईसाइट. वे बहुत ही निराश रहती थी, बहुत ही परेशान रहती थी. तब उन्हें एक दिन एक बहुत ही बेहतरीन टीचर मिली जिनका नाम था एनी सुलिवन. क्या था स्टूडेंट्स? एनी सुलिवन. वह उन्हें बहुत ही हेल्प करती थी पढ़ने और लिखने में. ब्रेल में उन्हें पढ़ने और लिखने में वो हेल्प करती थी. देन शी बिकम एजुकेट एंड उन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिखी. जो पीपल सुन नहीं सकते उन्हें डेफ कहा जाता है और जो बोल नहीं सकते उन्हें म्यूट कहा जाता है. और ऐसे लोग साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं. जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जिनका ब्रेन फंक्शन नहीं करता अच्छे से वो उन पीपल्स को मेंटली चैलेंज्ड पीपल कहा जाता है. और ऐसे लोगों की बहुत सारी स्पेशल नीड्स भी होती हैं. It is important to remember that a disability may be present at the time of birth or may be occur any time during one's lifetime. Elderly and sick people. Students, we should always remember that disability occurs at any time. It may be present at the time of birth or it may be occurs at any time during your lifetime. Students, there are many famous personalities who were either born with disability or they met with tragic incident, but their disability did not let their confidence down. Like you know about Albert Einstein. आप सबको एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पता होगा स्टूडेंट. ही वॉज फेमस मैथमेटिशियन हु हैड लर्निंग डिसेबिलिटी. उनमें भी एक डिसेबिलिटी थी. कैसी डिसेबिलिटी थी? लर्निंग डिसेबिलिटी. ही डिडंट स्पीक अंटिल एट द एज ऑफ 3. He had a very difficult time doing maths in the. It was also very hard for him to express himself through writing. But in future he became very famous scientist, mathematician. Like Albert Einstein, there are many more personalities, famous personalities with disability. और भी बहुत सी ऐसी famous personalities हैं जिनमें बहुत सारी disabilities थी. Like Deepa Malik, she is an Indian athlete. Sudha Chandram, she is an Indian film and TV actress and an accomplished Bharatnatyam dancer. Elderly and sick people. People feel weak, tired and become inefficient during old age. They lost their strength and also have various health problems. They usually become dependent on others for their needs. Old Age Day is celebrated on 1st October worldwide. Old people need extra care. ओल्ड एज में पीपल बहुत ही वीक और टायर्ड फील करते हैं. उनमें बहुत कम स्ट्रेंथ होने की वजह से उन्हें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं. लाइक आपने भी अपने घर में देखा होगा जो ओल्ड पीपल होते हैं उनमें स्ट्रेंथ कम होने की वजह से उनमें बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है. और इसकी वजह से वह अपने काम खुद नहीं कर पाते और वो दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं. अपनी नीड के लिए उन्हें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है. ओल्ड एज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 अक्टूबर को. ओल्ड पीपल को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है. Everyone falls sick at some time or on the other. It is a time when we need extra love. We need love, care and consideration. Orphans are children who do not have parents. They live in special homes called orphanages. They are usually deprived of many emotional and daily needs. That's a child gets in family. We should be considerate towards them. जब भी कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार की और केयर की ज़रूरत होती है. राइट. ऑर्फन्स कौन होते हैं? ऑर्फन्स वे चिल्ड्रन होते हैं लाइक दे डोंट हैव पेरेंट्स. उनके पेरेंट्स नहीं होते जिसकी वजह से वे जिस घर में रहते हैं, जिस स्पेशल घर में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? ऑर्फनेजेस. उन्हें बहुत सारी इमोशनल और डेली नीड से गुजरना पड़ता है जो एक चाइल्ड अपनी फैमिली से पूरा करता है. हम सबके पास हमारी फैमिली होती है हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए. बट ऑफन चिल्ड्रंस के पास उनकी फैमिली नहीं होती. इसीलिए हम सबको उनकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. हाउ कैन वी हेल्प? ऑल दीज स्पेशल पीपल नीड स्पेशल केयर to lead a normal life. Taking care of elderly people.
बाय टेकिंग हमें एल्डरली पीपल की हेल्प कैसे करनी चाहिए? बाय टेकिंग केयर ऑफ देयर पर्सनल नीड्स सच एज देयर मेडिसिन, हॉबीज, हेल्थ, फूड एंड क्लोथ्स एक्सेट्रा। हमें जो एल्डरली पीपल्स होती हैं उन्हें उनकी टेक केयर कैसे करनी चाहिए? हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी मेडिसिन लेने में उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके फूड में उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके कपड़ों में, एवरीथिंग उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। बाय इन्वॉल्विंग देम इन ऑल फैमिली एक्टिविटीज़ हमें उन्हें हर फैमिली की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना चाहिए। बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम और हमें उनके साथ टाइम भी स्पेंड। टेकिंग केयर ऑफ सिक पीपल बाय नॉट डिस्टर्बिंग द पेशेंट एंड लेटिंग देम टेक एज मच रेस्ट एज दे नीड। जब कोई हमारे घर में सिक होता है पर्सन, कभी कोई पर्सन बीमार होता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ऐसे पेशेंट को, और उन्हें रेस्ट करने देना चाहिए। बाय गिविंग देम वेल कुक्ड हेल्दी एंड डाइजेस्टेबल फूड हमें उन्हें अच्छा हेल्दी खाना देना चाहिए जो कि उन्हें ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाए। बाय टेकिंग देम टू द डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप हमें उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए फॉर देयर रेगुलर चेकअप। बाय हेल्पिंग देम इन टेकिंग मेडिसिन उनको मेडिसिन लेने में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ ऑर्फन्स एंड फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन बाय मेकिंग देम आवर फ्रेंड्स एंड लविंग देम हमें उन्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहिए और उन्हें प्यार करना चाहिए। बाय इंकरेजिंग देम टू स्टडी, प्ले गेम्स एंड डेवलप देयर हॉबीज़ हमें उनका ध्यान स्टडी में रखना चाहिए, उनके साथ गेम्स खेलनी चाहिए और कुछ हॉबीज़ उनके अंदर डेवलप करवानी चाहिए। बाय हेल्पिंग देम वेन एवर दे आर इन नीड एंड स्पेंडिंग टाइम विद देम हमें उनकी मदद के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए जब भी उन्हें हमारी नीड हो, और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज थैंक्स टू गॉड फॉर मेकिंग अस सो हेल्दी। Fill in the blanks. Dash was Helen Keller teacher Annie Sullivan. Louis Braille was from Dash. Louis Braille कहाँ से थे? फ्रांस से। Orphans live in a special home called orphanages. जहाँ पे ऑर्फन बच्चे रहते हैं उस घर को क्या कहते हैं? ऑर्फनेजेस। ओल्ड एज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन डैश। ओल्ड एज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 अक्टूबर। डैश आर चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते? ऑर्फन्स। गिव वन वर्ड आंसर। अ पर्सन हु कैन नॉट सी जो पर्सन देख नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं? ब्लाइंड। अ पर्सन हु कैन नॉट हियर जो पर्सन सुन नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं? डेफ। अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक जो पर्सन बोल नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं? म्यूट। पीपल हु डू नॉट हैव नॉर्मल ब्रेन फंक्शन ऐसा पीपल जिनका ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं करता, फंक्शन नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? मेंटली चैलेंज्ड। चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स ऐसे चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्फन्स। मैच द कॉलम। ब्रेल का कंसर्न किसके साथ है? रेस्ड डॉट्स, क्योंकि ब्रेल में रेस्ड डॉट्स को रेस्ट किया जाता है तभी फिंगर्स के साथ हम उनको फील कर सकेंगे। ओल्ड एज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 अक्टूबर। ऑर्फनेजेस क्या होते हैं? स्पेशल होम्स। डम्ब पीपल कौन होते हैं? दे कैन नॉट स्पीक जो पीपल बोल नहीं सकते हम उन्हें डम्ब भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बैक एक्सरसाइज। आई होप आप सबको आज का चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आप खुद भी घर पर इसे रीड कीजिएगा अच्छे से एंड अपनी बैक एक्सरसाइज को भी फिल कीजिएगा। Okay students, stay safe, stay healthy. Thank you.